ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ۔ ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان۔ آزاد پریس کو جمہوریت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے، لیکن آج دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں صحافی شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں کمزور کیا جا رہا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں بھارت کی، جہاں مین اسٹریم میڈیا میں آج وہ آوازیں تو بہت بلند سنائی دے رہی ہیں جو حکومت کی ہاں میں ہاں ملاتی ہیں، لیکن نہ کہنے والوں کے لیے جگہ کچھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ سوال پوچھنے والے تھانے کورٹ کچہری کے چکر میں پھنسنے لگے ہیں۔ اب مودی سرکار کے پاس تو بہت بھاری مینڈیٹ ہے، لیکن کیا بھارت کی جمہوریت بھی مضبوط ہے؟ جواب کے لیے آج میرا سورس ہے ایوارڈ یافتہ صحافی عارفہ خانم شیروانی۔ کہانی اس بھارت کی جو اب بھی کروڑوں دلوں میں بستا ہے۔ عارفہ 20 سال سے صحافت سے وابستہ ہیں۔ ان دنوں بھارت میں تیزی سے مقبول ہونے والے ڈیجیٹل نیوز پلیٹ فارم دا وائر کے ساتھ اینکر اور سینئر ایڈیٹر ہیں۔ راہل گاندھی کیمرے پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2019 میں اگر ان کی سرکار بنتی ہے تو رفال کے ساتھ ساتھ رابرٹ واڈرا پہ بھی جانچ ہوگی۔ چوٹی کے سیاستدان ہوں یا مذہبی رہنما، عارفہ کے پاس سب کے لیے چبھتے ہوئے سوال ہیں۔ بہار میں الیکشن کی گہما گہمی ہو یا آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد کشمیر کی سنسان سڑکیں، سچ کی تلاش میں عارفہ کے قدم اب تک رکے نہیں۔ ابھی ہمیں منع کیا جا رہا ہے یہاں سے کہ ہم یہاں ان لوگوں کے ساتھ شوٹ نہ کریں، بات چیت نہ کریں، تو فی الحال بہت سے ایوارڈ جیت چکی ہیں۔ سرکاری راجیہ سبھا ٹی وی اور چوٹی کے پرائیویٹ چینل NDTV کے ساتھ بھی بطور رپورٹر اور اینکر کام کر چکی ہیں۔ ان کے تند و تیز سوالوں اور کامنٹری کے جتنے فینز ہیں، اتنے ہی ان پر ملک کا دشمن ہونے کا الزام بھی لگاتے ہیں۔ حکومت ہم اس کو بولیں گے جس کو کشمیری ووٹ ڈالیں گے۔ تو آج کے بھارت میں سوال اٹھانا کیسا ہے، جانتے ہیں عارفہ خانم شیروانی سے۔ بہت شکریہ وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالنے کا۔ میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی آپ کی ایک ٹویٹ سے۔ آپ نے ٹویٹ کیا کہ ashamed of the medium to which I gave several years of my life and career، اور یہ آپ نے کشمیر سے واپس آ کے یہ ٹویٹ کی۔ مجھے تھوڑا وجہ بتائیے کیوں آپ کو یہ لکھنا پڑا؟ نیشنل میڈیا جسے کہا جاتا ہے یا دہلی میڈیا جسے کہا جاتا ہے، جس طرح سے اس نے بالکل کنٹراسٹنگ پکچر پیش کی ہے کشمیر کی، جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، جو میں خود دیکھ کر آئی ہوں وہاں کئی دن گزارنے کے بعد، اور جو کچھ یہاں پر ٹیلی ویژن چینلز پر دکھ رہا ہے، دونوں طرح سے پورے طریقے سے کنٹراسٹ ہے۔ وہاں پر بول رہے ہیں نیشنل میڈیا پر، ٹیلی ویژن چینلز پر لوگ کہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ نارمل ہے۔ تو اس لیے مجھے اس بات کو لے کر افسوس بھی ہوا اور شرم بھی آئی کہ جو جرنلسٹ ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ جو حقیقت ہے، جو ریالٹی ہے، اس کی عکاسی کرنا، لیکن یہاں پر پوری طریقے سے تصویر الگ دکھائی جا رہی ہے۔ دا وائر کی ٹیم کے لیے بھی یہ سمبھو نہیں تھا کہ ہم کشمیر کے الگ الگ علاقوں میں، خاص کر گاؤں دیہاتوں میں جا سکیں اور آپ کو وہ رپورٹس دکھا سکیں، حالانکہ کچھ ہمارے سنواداتاؤں کے ذریعے ہم نے آپ کو ضرور دکھایا۔ کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو اس کی، کیوں نیشنل میڈیا نے بھارت میں اس سے مختلف دکھایا جو کشمیر میں گراؤنڈ ریالٹی تھی؟ اس کی سیدھے طور پر وجہ میں دیکھتی ہوں کہ پچھلے 5-6 سال میں جو پالیٹکس ہمیں دیکھنے کو ملی ہے ہندوستان میں، وہ نیشنلزم کے ارد گرد پالیٹکس ہے۔ میڈیا نے بھی ایک طرح سے نیشنلسٹ رخ اپنا لیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پچھلے 5-6 سال میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جو گورنمنٹ کی جو آفیشیل لائن ہے اس کو ٹو کر رہی ہے میڈیا۔ کوئی بھی ایسی چیز چھاپنے کو یا دکھانے کو میڈیا تیار نہیں ہو رہی ہے جو آفیشیل سٹینڈ ہے گورنمنٹ کا وہ اس کے خلاف ہو۔ کیا وجہ نظر آتی ہے کہ میڈیا نے اپنے لیے یہ راستہ بنا لیا کہ وہ حکومت کی لائن کو ٹو کرے، ناٹ جسٹ آن کشمیر بٹ اور ایشوز پر بھی؟ دیکھیے دنیا بھر میں آپ نے دیکھا ہے سیرا، جب بھی یہ ہوتا ہے کہ سو کالڈ جب اسٹرانگ گورنمنٹس ہوتی ہیں، جب مضبوط گورنمنٹس ہوتی ہیں، بڑے مینڈیٹ کی یہ سرکار ہے یہاں پر، تو جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان کے سامنے جھکتی بھی نظر آتی ہیں، چاہے وہ جوڈیشری ہو یا جو انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہوں، میڈیا ہو۔ تو یہ وہی ایک وجہ ہے، یہ اسی طرح کا ایک ہمیں ٹینڈنسی نظر آ رہی ہے۔ تو اس کے پیچھے وجہ یہ بھی میں دیکھتی ہوں ایک اور، کہ جو ایک طرح کا میجورٹیرینزم جو ہندوستان میں نظر آ رہا ہے، جو اکثریت جس طرح کی نظر آ رہی ہے، وہ اس سے بھی پوری طریقے سے متاثر ہیں جو جرنلسٹ ہیں، کیونکہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ بھی عام لوگ ہیں، وہ بھی ہماری طرح باقی لوگوں کی طرح جو ہیں ڈاکٹرز، انجینئرز یا اور دوسرے پروفیشنلز کی طرح نیشنلسٹ ہو جانا چاہتے ہیں۔ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کا مطلب سرکار ہی ہوتا ہے، ملک کا مطلب حکومت
हुकूमत ही होता है। मुल्क का मतलब वो लोग नहीं हैं जो डेमोक्रेसी के हाशिए पे पड़े हुए हैं। लेकिन इसमें जो खुशी की बात है, अच्छी बात यह है कि डिजिटल मीडिया में आप ये देखेंगी कि इसके बरक्स आपको एक तस्वीर बिल्कुल उल्टी नज़र आएगी। बल्कि पिछले 5-6 सालों में 2 अलग अलग तबके नज़र आए हैं मीडिया में। एक तरफ ख़ासकर टेलीविज़न या हिंदी अखबारों को मैं कहूँगी जो एक तरह की लाइन लेते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जो प्रो पीपल जर्नलिज्म देखा जा रहा है वो डिजिटल मीडिया में देखा जा रहा है, या हिंदुस्तान के बाकी अंग्रेज़ी अखबार हैं उनमें भी हम देख रहे हैं। आरफा, भारत हमेशा से एक डेमोक्रेसी रहा है, कभी कोई मार्शल लॉ नहीं लगा। आपको क्या लगता है क्या हुआ ऐसा कि एक डेमोक्रेसी में, एक हिस्टोरिकली एक मुल्क जमहूरियत के साथ चल रहा है, वो इस मकाम पे खड़ा हो गया और ख़ास तौर पे उसका प्रेस इस मकाम पर आ गया? आप ठीक कह रही हैं। दरअसल अभी तक हिंदुस्तान को एक मॉडल स्टेट माना जाता रहा कि किस तरह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो चैप्टर हमें बचपन से लेकर अब तक बताया गया कि तमाम तरह के यहाँ पर मज़हब हैं, कास्ट हैं, अलग अलग रीजनल डाइवर्सिटी है, तमाम तरह की डाइवर्सिटीज़ के बावजूद हिंदुस्तान एक रहा और उस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की हमने हमेशा कोशिश की। और इसमें जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके रोल को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो एक मॉडल स्टेट था उसकी पूरी इमेज को एक तरह से धक्का पहुंचा है। तो ये भी एक तरह का रियलाइजेशन हमें हो रहा है कि 70 साल में जिन इंस्टीट्यूशंस पे हमें बहुत यकीन था, बहुत हमें एक तरह से फ़ख्र था, वो इंस्टीट्यूशंस उतनी मजबूती के साथ हमारे साथ नहीं खड़े हुए हैं, उस डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। अच्छा, डिजिटल की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक तरफ तो डिजिटल मीडिया जिस तरह द वायर है, क्विंट हैं, इनको तो स्पेस मिली है, लेकिन डिजिटल के ज़रिए जिस तरह मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके IT विंग्स हैं, उनको भी उतनी ही स्पेस मिल गई है। फिर आप देखते हैं कि ट्रोल्स और ख़ास तौर पे ख़वातीन के पीछे जिस तरह से ट्रोल्स आते हैं उस तरह सड़क पर किसी के साथ नहीं होता। तो डिजिटल के कुछ पिटफॉल्स भी हैं, उनको किस तरह से आप बतौर एक फ़ीमेल जर्नलिस्ट नेविगेट करती हैं? पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होने की भी बड़ी वजह यह है कि चूँकि डिजिटल मीडिया इतनी बड़ी एंटिटी बन चुका है, जो पॉलिटिकल ताकतें हैं वो यहाँ आकर भी अपना दबदबा बनाना चाहती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि डिजिटल स्पेस ही अब सबसे बड़ा स्पेस बन चुका है। तो इसलिए जो नया अखाड़ा बन गया है सियासत का, जो नया अखाड़ा बन गया है ओपिनियन का, वो डिजिटल ही है। तो ये बात सच है कि कई बार आपको शिकार होना पड़ता है, कई बार बहुत बेदर्द तरीके से, बिल्कुल क्रूड तरीके से लोग कुछ भी लिख देते हैं जो उनका दिल चाहता है। लेकिन अब इस सच्चाई को भी हम समझ चुके हैं कि ये एजेंडा के तहत, प्रोपेगेंडा के तहत कुछ लोगों को निशाना बनाया जाता है। ये दुख की बात है कि एक जर्नलिस्ट को, और ख़ासकर एक वुमन जर्नलिस्ट को ये मान के चलना पड़ रहा है कि ट्रोल्स का सामना करना भी उसकी इट्स अ पार्ट ऑफ अ जॉब, उसकी काम का एक हिस्सा है। लेकिन ये सच है कि मुझे इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि आपका जो काम है वो सीधे तौर पर आपको जो आपके ऑडियंस हैं उनसे जोड़ता है। बल्कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि कमेंट सेक्शन में या सोशल मीडिया के ज़रिए बड़ी बड़ी ख़बरें लोगों ने मुझ तक पहुंचाई हैं, उन ख़बरों को फिर मैंने कवर भी किया है जो टीवी में हमारे पास अवेलेबल नहीं था, या अखबार में हम तक पहुंचते पहुंचते बहुत वक्त लग जाया करता था। तो डिजिटल मीडिया बड़ा डेमोक्रेटिक मीडिया है। अगर इसका ये एस्पेक्ट हम छोड़ दें कि वहाँ भी जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिकल जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं वो वहाँ घुस गए हैं। जब सरकार को अपनी बात आवाम तक पहुँचाने के लिए अब ट्रेडिशनल न्यूज़ मीडिया की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ट्रेडिशनल न्यूज़ मीडिया पे प्रेशर जो है वो क्यों डल रहा है? इंटरेस्टिंग बात है, ये दिलचस्प बात है कि जब सरकार सीधे लोगों से बात कर सकती है तो फिर न्यूज़ चैनल्स को क्यों रास्ता बनाया जाए। और यही मैंने अभी कल ही द वायर पे ही एक रिपोर्ट मैंने फ़ाइल की कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में जो मीडिया है उसका जो रोल है, अगर गवर्नमेंट ये समझ रही है कि जो TV चैनल्स हैं वो बड़े अच्छे एम्बेसडर्स हैं और वो सरकार की बात को, उसके फ़ैसले को, उसके ये बहुत अहम कदम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये बड़े ख़राब एम्बेसडर्स हैं, ये बुरे एम्बेसडर्स हैं। क्योंकि शायद गवर्नमेंट भी इस तरह से नहीं चाहेगी जिस तरह से न्यूज़ चैनल्स इन ख़बरों को पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अवाम तक। तो ये बात सच है कि जो TV चैनल्स हैं वो, मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि फ्यूचर में वो धीरे धीरे उनका दायरा घट रहा है, लोगों का यकीन उनके लिए कम हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे, अभी भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास या तो इंटरनेट जो है वो मीडियम नहीं है, या डिजिटल मीडिया उतनी बड़ी ताकत अभी नहीं बन पाया है जितना लेगेसी मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया जो कि बहुत सारे सालों से लगातार हमारे सामने है। तो उसमें कुछ वक्त लगेगा। जब TV चैनल से धीरे धीरे जो व्यूअर्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे डिजिटल पे, तेज़ी से ये काम चल रहा है कि धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन TV की जो ताकत है अभी उससे इनकार हम नहीं कर सकते। और यही वजह है कि कॉरपोरेट्स, गवर्नमेंट और जो भी ताकतवर ग्रुप्स हैं वो अभी भी TV पर दाव लगा रहे हैं। और इस वक्त प्रिंट जर्नलिज्म का क्या स्कोप नज़र आ रहा है भारत में?
मजबूत गवर्नमेंट के पीछे के सामने झुकते हुए भी नज़र आ रहे हैं अखबारात, लेकिन अभी भी जो क्रेडिबिलिटी है, जो यकीन है आम लोगों का, वो प्रिंट में बना हुआ है, ख़ासकर जो अंग्रेज़ी प्रिंट है मैं उसको कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो रिलीजियस नेशनलिज्म का पूरा फिनोमेना है ये हिंदी मीडिया के थ्रू ज़्यादा आ रहा है। और एक मुसलमान के तौर पे आज के भारत में आपके लिए काम करना, घर से बाहर निकल के आज़ादी के साथ, वो किस कदर मुश्किल हुआ है? कुछ उस पर इम्पैक्ट हुआ है किसी किस्म का? मैं ये कहती हूँ कि हिंदुस्तान में जो फ़िलहाल सबसे बड़ी माइनॉरिटी है वो मुसलमान नहीं है, सबसे बड़ी माइनॉरिटी है लिबरल्स, वो लोग जो हिंदुस्तान की लिबरल डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। तो ये बात सच है कि ख़ास तबके, ख़ास रिलीजन के से आने की वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन यकीन जानिए कि मेरे जो दोस्त हैं जो लिबरल डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनकी भी दुश्वारियाँ कम नहीं हैं। पिछले दिनों में हमने देखा गौरी लंकेश जो कि हिंदुस्तान की जो लिबरल आइडिया ऑफ इंडिया है उसके लिए लड़ रही थी, उसके लिए लिख रही थी, उनका कत्ल कर दिया गया, वो मुसलमान नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी, इसलिए मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी है, सबसे बड़ी जो अक़लियत है, वो हिंदुस्तान में फ़िलहाल वो लोग हैं जो लिबरल डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। वो सहाफ़ी जो नज़रियाती तौर पे आइडियोलॉजिकली आपसे मुत्तफ़िक नहीं हैं, उनकी तरफ से आपको किस तरह का फ़ीडबैक मिलता है? पूरी पोलराइज्ड हो चुकी है जो इंडियन सोसाइटी है, ये पोलराइजेशन हमें जर्नलिज्म में भी नज़र आ रहा है। मैं कई बार ये देखती हूँ कि कुछ न्यूज़ चैनल्स की जो यंग एंकर्स हैं वो ख़ुद ट्विटर पे मुझे ट्रोल करने लगती हैं। ये अफसोस भी होता है, हैरानी भी होती है कि इस तरह का जो पोलराइजेशन है उसने जर्नलिज्म को भी, जर्नलिस्ट को भी दो खेमों में बांट दिया है। यहाँ पर एक बड़ी बहस ये भी है कि कौन नेशनलिस्ट लोग हैं, कौन एंटी नेशनल हैं। एक बड़ा नैरेटिव है टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है जो कि हिंदुस्तान को अलग अलग टुकड़ों में बांटना चाहता है। तो कभी कभी हम इस बात को मजाक में भी उड़ा देते हैं कि कौन असली टुकड़े टुकड़े गैंग है, लेकिन ये बात सच है कि पहले जिन डिफरेंसेस को आप शायद हल्के तरीके से ले सकते थे वो डिफरेंसेस अब सीरियस हो गए हैं। ट्विटर पे कई बार इस तरह के झगड़े आम हो गए हैं दो जर्नलिस्ट के बीच में, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। पहले ये ट्रेडिशन था हिंदुस्तान में कि शायद न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस या जर्नलिस्ट एक दूसरे के बारे में, उनके खिलाफ नहीं लिखा करते थे, ये एक अनरिटन रूल होता था, वो भी अब टूट गया है। टीवी चैनल्स के बारे में डिजिटल मीडिया रिपोर्टिंग करता है, डिजिटल मीडिया के बारे में टीवी चैनल्स बहस करते हैं, तो ये साफ तौर पर उस पोलराइजेशन की तरफ भी इशारा करता है। जर्नलिज्म के अंदर जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसके अंदर जो स्प्लिट नज़र आ रहा है इस वक्त भारत में, वो आपके ख्याल में भारत के अंदर ही सहाफ़त की आज़ादी के मुस्तकबिल के लिए क्या मानी रखता है, कैसे उसको मुतासर कर सकता है? देखिए, हिंदुस्तान में सहाफ़त आज़ाद है, जर्नलिज़म ज़िंदा है और जर्नलिज़म ज़िंदा रहेगा। ये अलग बात है कि कुछ बड़े अखबार या टीवी चैनल्स ये चाहते हैं कि गला घोट दिया जाए। हुकूमतें हमेशा से कोशिश करती रही हैं, कुछ ख़ास हुकूमतें कुछ ज़्यादा कोशिश कर रही हैं कि जर्नलिज़म का गला घोट दिया जाए, लेकिन जर्नलिज़म हिंदुस्तान में आज़ाद रहेगा। वो मुश्किलों से गुज़र रहा है, चैलेंजेस से गुज़र रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन दर्जनों की तादाद में अभी भी ऐसे सहाफ़ी हैं, सिर्फ मेरे जैसे नहीं, जिनको एक कैमरा मिल जाता है, माइक मिल जाता है। मेरे पास बहुत ताकत है, एक ट्विटर हैंडल है जिसके ज़रिए मैं अपनी बात कह सकती हूँ। मैं सोशल मीडिया से कनेक्टेड हूँ, लाखों लोग ऐसे हैं जो सुनना चाहते हैं। लेकिन आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो छोटे छोटे स्ट्रिंगर्स हैं, जो बिहार, झारखंड या और दूसरे दूर दराज के इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में ही एक जगह है जहाँ पर किसी गाँव में स्कूल में एक लोकल जर्नलिस्ट ने वहाँ नमक रोटी खाते हुए सरकारी स्कूल में एक बच्चों को दिखाया। वो वीडियो जब एयर हुआ उस बात को लेकर इतना परेशान हो गया एडमिनिस्ट्रेशन कि उनके खिलाफ ही FIR दर्ज कर दी। लेकिन वहीं पर लोकल जर्नलिस्ट दर्जनों की तादाद में उस सहाफ़ी के लिए, अपने साथी के लिए जमा हो गए, वहाँ पर टेस्ट किया। यकीन जानिए आप कि सिर्फ एक न्यूज़ आइटम हिंदुस्तानियों तक पहुँचाने के लिए, अपने जो व्यूअर्स हैं, जो अपने रीडर्स हैं, उन तक पहुँचाने के लिए जान पर खेल रहे हैं वो लोग। तो मैं उन लोगों को सलाम करती हूँ, उन लोगों को सल्यूट करती हूँ, और सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से हिंदुस्तान में जर्नलिज़म ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। ऑलराइट, आरफा खानम शेरवानी हमारे साथ थी दिल्ली से। बहुत शुक्रिया आरफा, आपने हमें जो भारत में इस वक्त जिन हालात में सहाफ़ी काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो सहाफ़ी जो बाहर निकल के वो नैरेटिव सामने लाना चाहते हैं जिससे हुकूमत एग्री नहीं करती है, जो हुकूमत की आइडियोलॉजिकल लाइन को तो नहीं करते, वो किस किस्म के माहौल में काम करें, इस बारे में हमने बात की। आरफा खानम शेरवानी, आपका बहुत शुक्रिया। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है।